દર્શક મિત્રો, હું છું જલ્પા મહેતા. આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે આજના વિશેષ કાર્યક્રમ હેલ્થ પ્લસમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, હેલ્થ પ્લસમાં આજે આપણે ચર્ચા કરીશું સ્પાઇન પર કે હાલ જે રીતે ઘણા લોકોને સ્પાઇનને લઈને પ્રોબ્લેમ હોય છે. ખાસ કરીને આપણે જો વાત કરીએ કે આપણા શરીરમાં અનેક અંગો આવેલા છે, જો કે એને લઈને કઈ ને કઈ સમસ્યાઓ, જો ખાસ કરીને આપણે આજે મણકાની વાત કરીએ તો મણકાને લઈને પણ ઘણા લોકોને દુખાવો રહેતો હોય છે અથવા તો કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે, પરંતુ ખ્યાલ નથી આવતો. બસ શરીરમાં દુખાવો થાય છે એટલી ખબર હોય છે, પરંતુ એ દુખાવા થવા પાછળનું કારણ છે. એમાં જો ખાસ સ્પેશિયલ ભાગની જો વાત કરીએ, આજે જો મણકાની વાત કરીએ મણકાની, તો ત્યાં મણકામાં દુખે છે, પણ ખરેખર એનું કારણ શું છે, શું કામ, અને હાલ જે રીતે ઘણા લોકો એમની સર્જરી કરાવતા હોય છે, પરંતુ ઘણા લોકોને ખ્યાલ પણ નથી હોતો કે એમની સર્જરી થઈ શકે છે અથવા તો થઈ શકે છે, તો એમની જે પ્રોસેસ છે તે કઈ રીતની હોય છે. એટલે હાલ આપણે સમગ્ર માહિતી મેળવીશું અને સમગ્ર ડિટેલ જાણીશું. આજે મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ડોક્ટર ગૌરવ ખંડેલવાલ. જી ડોક્ટર સાહેબ, આપનું કાર્યક્રમમાં સ્વાગત છે. જો આપણે ડોક્ટર ગૌરવ ખંડેલવાલ, જો આપણે ડોક્ટર સાહેબની જો વાત કરીએ, એમાં ખાસ જેમની ડિગ્રીની અને એમની જો સ્પેશિયાલિટીની વાત કરીએ, તો ડોક્ટર ગૌરવ ખંડેલવાલ જે છે તે નેશનલ બોર્ડ સર્ટિફાઈડ સ્પાઇન સર્જન ફ્રોમ મુંબઈ થી એમની ડિગ્રી મેળવી છે. જો આપણે ખાસ એમની ડિગ્રીની વાત કરીએ તો FNB ઇન સ્પાઇન સર્જરી, જેમની હાલ ડિગ્રીની વાત કરી રહ્યા છે. જો કે હાલ એમના અનુભવોની વાત કરીએ તો જો ખાસ કરીને આપણે જો સુરતની જે આપણી ફેમસ હોસ્પિટલ સેલ્વે મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલ છે, તેમાં છેલ્લા 4 વર્ષથી પોતાની ફરજ નિભાવી રહ્યા છે. અને જો ખાસ સર્જરીની વાત કરી રહ્યા છે, તો જો આપણે એમના અનુભવોની, એમની સર્જરીની વાત કરીએ તો એમને 5000 થી પણ વધુ સર્જરીઓ કરી છે. અને એ પણ જેમની વધારે સ્પેશિયાલિટીની વાત કરીએ તો એ છે જીરો સ્ટિચ સર્જરી, કે હાલ જે એમની એક સ્પેશિયાલિટી છે. ઘણી વખત આપણે સાંભળતા હોય છે કે સર્જરી કરાવી એટલે ચીડફાડ કરવામાં આવે, ઘણા બધા સ્ટીચ લેવામાં આવતા હોય છે, એટલે એ બધી બાબતોને લોકો ડરી જતા હોય છે અને સર્જરી કરાવતા નથી. જો કે હાલ આપણે દરેક બાબતની માહિતી એમની પાસેથી મેળવીશું, એમની પાસેથી જાણીશું. जी डॉक्टर साहब, मैं आपको पहले ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हम अभी स्पाइन पे ये सब बातें कर रहे हैं, लोगों को ये समझा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि स्पाइन क्या होता. तो आप सबसे पहले हमारे दर्शक मित्रों को ये बताइए कि स्पाइन होता क्या है. तो स्पाइन वो हड्डी का ढांचा है जो सर से लेके कमर तक रहता है. सर में से जो भी नसें पूरे शरीर में आती है वो ये हड्डी के ढांचे के अंदर से ही फिर पूरे शरीर में आती है. तो गर्दन से लेके कमर तक रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एक एक छोटा फिर मणका होता है, उसको स्पाइन बोलते हैं. जी, और जैसे हम अभी बात करिए स्पाइन की, अभी बात की कि स्पाइन होता क्या है, लेकिन जो हम ज्यादातर बात करें तो जब स्पाइन की सर्जरी की बात आती है तो लोगों में बहुत सारा डर होता है. जैसे सर्जरी का नाम आता है, लोगों के अंदर एक डर बैठ जाता है. तो फिर आप ये लोग ये स्पाइन की ये जो सर्जरी से लोग डरते क्यों है? तो इसके काफ़ी कारण हैं. अभी तो फिर भी काफ़ी डर कम हो गया है. पहले के हिसाब से पहले तो बहुत ही ज़्यादा डरते थे, पर अब जैसे लोगों ने दूसरों पेशेंट्स को देखा है सर्जरी करके अच्छा होते हुए, तो अभी पहले से काफ़ी डर कम है. पर डर होने का मेन कारण ये है कि पहले कभी तो किसी की सर्जरी हुई है और वो सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, उसके बाद कोई तकलीफ़ बढ़ गई पेशेंट की या तकलीफ़ कम नहीं हुई, और फिर बाकी लोगों ने उनको जब देखा तो उनमें वो डर बैठ गया और फिर वो सोसाइटी में वैसा डर फैल गया था. तो ये सर्जरी जब फेल होती है या जब उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके कारण ही डर बना था. तो उसका होने का मेन 2 कारण है. एक तो कारण खुद पेशेंट ही है या एटलीस्ट है. तो बहुत दिनों तक जब तक तकलीफ़ गले पर नहीं आती तब तक पेशेंट्स काफ़ी बार ट्रीटमेंट लेते नहीं. अगर ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं तो ट्रीटमेंट काफ़ी बार पूरी नहीं करते. अगर थोड़े दिन में ठीक लगने लगे तो फिर से फॉलोअप में नहीं जाते, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते. तो धीरे धीरे तकलीफ़ बढ़ती जाती है और फिर जब इतनी बढ़ जाती है कि फिर नस पैरालाइज हो गई हो, उसके बाद फिर सर्जरी के लिए जाते हैं. तो कॉम्प्लिकेशंस पहले से ही अगर हो गए हो, उसके बाद अगर वो सर्जरी के लिए जाएंगे तो फिर रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे. और कोई भी सर्जरी कराने के बाद ये तो किसी को बताएगा नहीं कि मैंने ही देर करके अपना पैर पहले पैरालाइज कर लिया था. तो वो तो यही बताएगा कि देखो मैंने सर्जरी भी की बट अभी तक अच्छा नहीं हुआ. तो उससे फिर लोगों में और डर बैठ जाएगा. तो कुछ हद तक तो पेशेंट्स की भी गलती थी. दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे देश में कोई रेगुलेशन नहीं है
तो कुछ हद तक गलतियां डॉक्टर्स की भी थी। कुछ डॉक्टर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने के बावजूद वो मणके की सर्जरी करते हैं, फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन होने के बाद फिर डर बैठ जाता है। कुछ अच्छे डॉक्टर हैं जिनको सर्जरी एक्चुअली करनी आती भी है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंस्टीट्यूट्स में है जहाँ पर इक्विपमेंट अच्छी नहीं है, जहाँ पर माइक्रोस्कोप नहीं है, न्यूरो मॉनिटरिंग नहीं है, तो अच्छे सर्जन होने के बावजूद भी अच्छा काम नहीं कर पाते, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो वहाँ पर कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन जब होता है तो फिर वो नेगेटिव न्यूज़ बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाती है और फिर डर बैठ जाता है लोगों में कि सर्जरी करने के बाद भी ठीक नहीं होते पेशेंट या तकलीफ बढ़ती है। जी बिल्कुल, जैसे कि कोई उस किसी को बोलता है आप वहाँ पे जाओ, फिर वहाँ पे जाते हैं, फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड को कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उसको अच्छा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कई गलत हाथ में भी चला जाता है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन हम जैसे बात कर रहे हैं कि जैसे ये जो स्पाइन के जो पेशेंट होते हैं, तो क्या डॉक्टर साहब जो हर पेशेंट को क्या स्पाइन सर्जन को दिखाना चाहिए? नहीं, हर पेशेंट को तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि मणके का पेशेंट जो है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मणके की बीमारी है। तो जो कॉमनेस्ट सिम्टम्स है, जो आपको तकलीफ होगी, वो या तो गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, या हाथ पैर में झुनझुनी वगैरह देह दर्द, ऐसे टाइप की तकलीफ जब होती है तो आपको पता लग सकता है कि आपको मणके की तकलीफ हो रही है। तो इनमें से कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अगर आपको हो तो आप पहले या तो सेल्फ ट्रीटमेंट भी कुछ दिनों तक कर सकते हैं। अगर तकलीफ ज़्यादा है तो अपने पास वाले डॉक्टर के पास या अपने फैमिली फिजिशियन के पास एक बार जाकर दिखा सकते हैं। तो इनमें से अगर गर्दन में दर्द या कमर में दर्द ही है, और अगर वो दर्द थोड़ा हाथ में आ रहा है या पैर में आ रहा है, यहाँ तक ही अगर तकलीफ है, तो आप शायद पहले कुछ दिन एक पेन किलर की दवा जो घर में आपके पास होगी वो आप लेकर मलहम लगाकर थोड़ा सिकाई करके देख सकते हो, और ज़्यादातर लोग शायद ठीक भी हो जाएंगे। मगर अगर आपके हाथ में या पैर में सुन्नता आ रही है, पैर सुन्न पड़ जा रहा है, हाथ सुन्न पड़ रहा है, या झंझनी चल रही है और वो कंटिन्यूस चल रही है, दिन में भी रात में भी, या बार बार आ रही है और अपने आप वो एक दो दिन में कम नहीं होती, या फिर हाथ या पैर में कमजोरी आ गई, पहले जो काम कर पा रहे थे नहीं कर पा रहे, आपको बैलेंस में प्रॉब्लम, चलने में बैलेंस में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अगर तकलीफ शुरू हुई तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई डॉक्टर को तो एक बार दिखाना ही चाहिए। और अगर पूरा ही हाथ पैर हिलना ही बंद हो जाए, या फिर पेशाब में या संडास में पेशाब या संडास करने में आपको तकलीफ होने लगे, पेशाब अटकने लगे या बिना पता चले पेशाब हो जाए, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं तो इमीडिएटली आपको फिर स्पेशलिस्ट के पास जाना ही चाहिए। अगर आप काफ़ी दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हो फिर भी तकलीफ कम नहीं हो रही है तो फिर डेफिनेटली आपको एक स्पाइन स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे हम अभी बात की कि जो मनके की जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा है और सर्जरी की ज़रूरत है, ये हमें कैसे पता चलता है कि हमें मनके के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है? हाँ तो वही बता रहा था मैं कि जब मनके की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो नस में दबाव हो जाता है। अगर नसों में दबाव है, या तो एक तो दर्द ही बहुत ज़्यादा है जो कम नहीं हो रहा, या फिर अंदर मणके में कोई नस दब गई है, उसके कारण हाथ या पैर सुन्न हो गए, या झंझनी आ गई, या काम करना बंद हो गए, या पेशाब संडास में प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर तो आपको इमीडिएटली मणके के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे हम आपकी अगर स्पेशलिटी की बात कर रहे हैं अभी, तो जीरो स्टिच जो है आपने सर्जरी की है, तो आप सबको ये बताइए जीरो स्टिच स्पाइन सर्जरी क्या है? तो ज़ीरो स्टिच तो जस्ट एक ऐसा नाम है कि उसमें स्टिच नहीं आते इसलिए उसको ज़ीरो स्टिच बोल रहे हैं, मगर वो सर्जरी का मेन पर्पस ये है कि अंदर कोई भी चीरफाड़ बिना किए सर्जरी करना। तो मणके में जब भी सर्जरी होती है तो सर्जरी करने के बाद जो मेन प्रॉब्लम था वो काफ़ी बार ठीक हो जाता है, मगर वो जो चीरफाड़ होती है सर्जरी की उसके कारण तकलीफ बढ़ सकती है। और जो कमर के स्नायु वगैरह है वो अगर वो डैमेज हो जाए सर्जरी में तो फिर वो लंबे टाइम तक तकलीफ कर सकते हैं। तो बिना चीरफाड़ किए, जिसको मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं, आजकल आपने देखा होगा पेट की सर्जरी भी दूरबीन डाल के लैप्रोस्कोपी से होती है। तो सारे इस मेडिकल फील्ड्स में अभी कम से कम चीरा मार के, कम से कम चीर फाड़ करके जो सर्जरी करते हैं उसको मिनिमली इन्वेजिव बोलते हैं। तो उसमें मणके में जो हम सर्जरी करते हैं जिसको एंडोस्कोपी भी बोलते हैं, वो बहुत ही छोटी सी दूरबीन से होती है,
6.3 मिलीमीटर्स, मतलब आपकी छोटी उंगली से भी छोटी दूरबीन, सिर्फ वो छोटी दूरबीन अंदर जाती है। पहले का आपका जो भी नॉर्मल मसल हड्डियां जो है उसको बिना टच किए जो प्रॉब्लम है सिर्फ उसको ठीक करते हैं। इसमें कोई खून नहीं जाता। इसमें पेशेंट सर्जरी करते ही सीधा टेबल से ही चलना चालू कर देता है। इसमें पूरा भूल देने की भी ज़रूरत नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया में ही कर सकते हैं। तो इवन कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट जो है जिनको ज़्यादा बीमारी है उनमें भी आसानी से कर सकते हैं। और इसमें स्टिच भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना छोटा सा छेद रहता है कि उसको सीधा बैंडेड लगा सकते हैं और सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये है ज़ीरो स्टिच सर्जरी। जी, ज्यादातर क्या होता है सर्जरी आती है तो सब लोग यही सोच लेते हैं अगर मैं ये सर्जरी कराऊंगा, ऑपरेशन कराऊंगा तो मुझे 1-2 महीने का आराम करना पड़ेगा, ये सब और खास के वो चीर फाड़ से डरते हो, इसीलिए वो सर्जरी से ज्यादा डरते हैं। लेकिन अभी ज्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादातर लोगों को मतलब एक ही दिन में वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे तो अगर ये स्पाइन सर्जरी करवाई जिस पेशेंट ने, तो क्या वो एकदम पहले की तरह नॉर्मल रह सकता है? मतलब वो पहले की तरह जैसे नॉर्मल पहले रहते हैं वैसे ही सेम वैसे नॉर्मल ही रह सकते? क्या वो सब काम कर सकते, सब जगह पे जा सकते, सब कुछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो ज़्यादातर पेशेंट अगर टाइम पर सर्जरी कराने आ जाए तो जो भी वो पहले कर रहे थे वो सब कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे ऐसे पेशेंट है जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, वो अपनी जो हैवी वज़न वगैरह पहले उठा रहे थे वो सब भी करना चालू कर दिया उन्होंने। कुछ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो स्पोर्ट्स भी खेलते हैं पूरे एक्टिवली। इनफैक्ट एक पेशेंट तो है जो महाराष्ट्र श्री बना है सर्जरी करने के। महाराष्ट्र श्री मतलब वो कुश्ती लड़कर जो जीतते हैं स्टेट लेवल पर, उसको महाराष्ट्र श्री बोलते हैं। तो वो गर्दन का एक मणका पूरा चेंज करके आर्टिफिशियल मणका लगाया है, और वो करने के बाद कुछ सालों बाद ट्रेनिंग करके वो कुश्ती में स्टेट में उसने, जस्ट इमेजिन अगर सबसे अच्छा जीत कर अगर आया है, अगर वो कुश्ती जैसा इतना स्ट्रेसफुल अगर कोई एक्टिविटी कोई कर सकता है तो नॉर्मल एक्टिविटी तो सब कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम ज्यादातर बात करें तो ये जो स्पाइन की प्रॉब्लम है, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ना हमारी जो बॉडी में ना प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। उसमें अगर हम बात करें कि स्पाइन की, तो स्पाइन की भी प्रॉब्लम्स उम्र के साथ बढ़ती है। तो अगर जो उम्र के साथ सर्जरी करवानी है तो क्या वो सक्सेसफुल सर्जरी करवा सकते हैं किसी भी उम्र में? हाँ तो देखो, उम्र के साथ प्रॉब्लम्स तो बढ़ती है। अगर ज़्यादा लेट करते हैं सर्जरी में तो बाकी प्रॉब्लम भी बढ़ेगी ही, इसलिए भी हम कहते हैं कि ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मगर अगर बहुत ज़्यादा उम्र होने पर भी बीमारियां जैसे होती है वैसे अगर मणके की बीमारी हुई तो स्पाइन सर्जरी एक टीम एफर्ट है। इसमें अकेला सिर्फ सर्जन का काम नहीं होता, सर्जन का अपना काम होता है, मगर जैसे इसीलिए ज़रूरी है कि पेशेंट भी एक अच्छी जगह, एक ऐसे इंस्टीट्यूट में सर्जरी कराए जहाँ पर पूरी टीम मौजूद हो। जैसे अभी शैल्बी हॉस्पिटल में हमारी पूरी पहले तो स्पाइन की टीम है, फिर जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो सब एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसमें फिर पेशेंट की चीरफाड़ नहीं होगी। न्यूरो मॉनिटरिंग है जिससे नसें सर्जरी के बाद नॉर्मल रहेगी, इसका ख्याल रखा जाता है। इसके साथ में 30 फुल टाइम कंसल्टेंट्स हैं, तो 30 कंसल्टेंट्स हैं जिनको एक फ़ोन कॉल करने पे इमीडिएटली कोई भी स्पेशलिस्ट रेडी हो जाएगा। साथ में एक बहुत अच्छा आईसीयू है, आईसीयू में स्पेशलिस्ट हैं। तो किसी भी उम्र में कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, जब पूरी टीम ऑफ स्पेशलिस्ट विद बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अमंग देम, तो तब जाके अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। और ऐसे होने पर किसी भी एज में सर्जरी करने में प्रॉब्लम नहीं है। 100 इयर्स तक तो हम सर्जरी कर चुके हैं, फिर यूजुअली उससे ऊपर के पेशेंट्स तो आते नहीं, मगर बेसिकली एज कोई लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं। न्यू बॉर्न से लेके 100 इयर्स तक कोई भी उम्र में आसानी से सर्जरी सेफली की जा सकती है। जी बिल्कुल। और ये सर्जरी करवाने के बाद किस किस चीज का ख्याल पेशेंट को रखना चाहिए कि जिसकी वजह से ये सर्जरी करवाने के बाद उनको और कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए क्या क्या ख्याल रखना चाहिए पेशेंट को, किसी भी एज में हो, फिर किसी भी बीमारी में हो, जैसे कि डायबिटीज है, बीपी है, कोई भी बीमारी, उसके साथ अगर उसने स्पाइन सर्जरी करवाई है, तो कैंसर की बीमारी है, कैंसर के जो पेशेंट अगर ने उसको स्पाइन की प्रॉब्लम्स आई और स्पाइन सर्जरी करवाई है, तो ये सभी लोगों को किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि जिसकी वजह से उसको आगे और कोई प्रॉब्लम ना हो? तो इसमें काफ़ी सारे बातें आई हैं, बट पहले तो जब बीमारी नहीं हुई है तभी क्या ख्याल रखना चाहिए कि जिससे आप
मनके की प्रॉब्लम्स Problems कम से कर बच सके। सके, तो वो एक बात करेंगे तो मनके में बहुत सारे टाइप की बीमारियां होती है। कुछ कुछ बीमारियां तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अगर इन्फेक्शन होना है मनके में तो हो ही सकता है। मगर जो घिसावट होती है मनके में और कमर का दर्द और गर्दन का दर्द जो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, वो कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रेगुलर कसरत करो। तो रेगुलर कसरत करने से, कोई भी टाइप की कसरत हो वो कसरत करने से आपके जो मसल्स है, आपके जो स्नायु हैं, अगर वो उनमें इतनी शक्ति रहती है कि वो आपके बॉडी को प्रॉपरली सपोर्ट कर सके, तो बॉडी में डैमेज होने का चांस कम रहता है। जैसे कि अगर आप खेल कूद कर रहे हैं, उसमें अगर आपके स्नायु स्ट्रांग हैं तो आपकी हड्डियों पर, आपके डिस्क्स पर, आपके लिगामेंट्स पे ज़ोर आने का चांस कम रहता है, क्योंकि आपके स्नायु बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो इसलिए रेगुलर व्यायाम करना ज़रूरी है। बाकी हड्डियों की शक्ति के लिए पहले से ही, कम उम्र के टाइम से ही हड्डियों में शक्ति बनाए रखना ज़रूरी है, जिसको पीक बोन मास बोलते हैं। हड्डी में मास अगर आप बनाए रखेंगे कम उम्र में ही, क्योंकि उम्र के साथ धीरे धीरे हड्डी तो कमज़ोर होने ही वाली है, तो इसलिए एक ज़रूरी है कि जब हड्डी कमज़ोर बनने से पहले ही उसको आप जितना हो सके स्ट्रांग बनाएं, और फिर आगे उम्र के साथ में पौष्टिक आहार लेते रहें, जिससे कोई विटामिन या कैल्शियम की कमी ना हो आपकी हड्डियों को कमज़ोर करने के लिए, और साथ में कसरत भी करें, तो हेल्दी आपका मन का रहेगा। जी बिल्कुल। और सर्जरी के बाद किन किन चीज का ख्याल रखना चाहिए? तो वैसे कौन सी सर्जरी हुई है स्पाइन यूजुअली? सर्जरी की अगर हम बात हाँ, करें तो स्पाइन सर्जरी के बाद। नहीं, स्पाइन सर्जरी अभी स्पाइन हम बात कर रहे हैं एक शब्द लेकर, बट एक्चुअली मनके में बहुत टाइप की, करीब 250 टाइप की अलग सर्जरीज होती है, और हर सर्जरी के बाद में अलग अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। बट यूजुअली अगर हम जो दूरबीन वाली सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली सर्जरी करते ही पहले जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे थे उनमें से करीबन सारी एक्टिविटीज़ आप शुरू कर सकते हो, और करीब 1 महीने भर बाद तो पूरा हैवी वज़न वगैरह उठाना और जो कुछ स्पोर्ट्स एंड अदर्स जितनी एक्टिविटीज़ थी वो आपकी सारी नॉर्मली चालू हो जाती है। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो जिनको भी स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती है, पेन होता है, तो ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि मार्केट में जो ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है उनकी तरफ जाते हैं। जैसे बोले कि यहाँ पे आप जाओ, ये तकिया यूज करने से आपको आराम मिलेगा, ये बेल्ट पहनने से आपको आराम मिलेगा, अच्छा हो जाएगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मतलब जितने लोग बोलते हैं उतने लोग अलग अलग एडवाइस देते हैं, अलग अलग तरीके भी खाते हैं। कोई ऐसा बोलते कि आप आयुर्वेदिक दवाई मिलती है वो लो, आपको उससे अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है जो अलग अलग मार्केट में जो अवेलेबल है, तो उनमें से जो भी पेशेंट है उनको कौन सी ट्रीटमेंट यूज करनी चाहिए, कौन सी सही है इनमें से? तो पहले ये समझना ज़रूरी है, सिर्फ मनके के लिए ही नहीं मगर सारी बीमारियों के लिए, पूरे हेल्थ के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही बेसिक थिंग है, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग को ये समझ नहीं रहती कि सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ नाम की कोई चीज़ रहती है। सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ का मतलब है ज़्यादातर बीमारियां अगर आप उसको कोई भी इलाज ना करो तो समय के साथ अच्छी हो ही जाती है। आप कोरोना को ही ले लो, तो उसके ऊपर कोई एक्चुअली दवा काम नहीं कर रही है। उसमें से ज़्यादातर पेशेंट, सब नहीं, करीबन 90% पेशेंट्स को बीमारी होकर ठीक हो जाते हैं और कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको तकलीफ बढ़ेगी और फिर उनको दिखाना ही है। अब 90% जो स्पाइन के पेशेंट है वो कोई भी इलाज क्यों ना करा ले, कोई भी, वो इलाज है भी या नहीं, वो मंदिर में ही चले जाए, कोई बाबा की कोई बात ही सुन ले, तो वो ठीक होने ही वाले हैं। तो जैसे आपको अगर सर्दी हुई तो आप कोई इलाज करोगे तो 7 दिन में ठीक होगे, कोई इलाज नहीं करोगे तो भी 7 दिन में ही ठीक होगे। इलाज सिर्फ इसलिए कि 7 दिन आपको तकलीफ कम हो, सर्दी पे कोई इलाज तो है नहीं। तो वैसे ही 90% पेशेंट्स बिना कोई इलाज के विद समय के साथ ठीक होने वाले हैं। तो अगर उस टाइम पर आपने कोई भी इलाज करवा लिया तो आपका उसके बाद आप ठीक हो जाओगे, उस पर आपका विश्वास बैठ जाएगा और फिर आप जाके सबको बताओगे कि देखो मैंने ये नया तकिया आया है, बहुत ही स्पेशल है, इम्पोर्टेड तकिया महंगा वाला, वो यूज़ किया और उससे मेरी बीमारी ठीक हो गई। पर वो तकिया बीमारी ठीक नहीं कर रहा, वो तो अपने आप आपका शरीर ठीक कर रहा है जो हमेशा से कर ही रहा था। तो इसलिए आप नई एडवर्टाइजमेंट या नई कुछ चीज़ सुनी है उसके बहकावे में आके ये सब ट्रीटमेंट्स को इस्तेमाल मत करो, अपने आप पर एक्सपेरिमेंट मत करो।
आपके आसपास कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होंगे जिनको आप हमेशा से दिखाते हो, कम से कम उनका एक बार ओपिनियन ले लो। उन्होंने इतने साल इस फील्ड में बिताए हैं, इतनी स्टडी की है, तो इवन अ जनरल डॉक्टर को भी इतना तो पता ही होता है कि साइंटिफिक चीज़ें क्या है और प्रॉबेबली नॉन साइंटिफिक चीज़ें क्या है। तो खुद होके आप अगर पता नहीं कर सकते तो कम से कम एक डॉक्टर से पूछकर, एक प्रॉपर डॉक्टर से पूछकर उनका ओपिनियन ले लो और उसके बाद फिर आप इस्तेमाल करो। नहीं तो खुद होकर आप समझ नहीं पाओगे कि बीमारी अपने आप ठीक हुई है या आपने जो भी इस्तेमाल किया उससे। तो उसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि वो आप जो भी तकिया या चद्दर इस्तेमाल करते रह गए और आपकी बीमारी बढ़ गई और फिर जब तक आप प्रॉपर डॉक्टर के पास पहुंचते तब तक ठीक होने जैसे आप नहीं बचे। जी, और अगर हम ज्यादातर बात करें डॉक्टर साहब, तो अभी ना सबकी लाइफस्टाइल और जो अभी खाना है वो एकदम जो रेगुलर नहीं है। जैसे कि लोगों का जो ज्यादातर 8-9 घंटे तक बैठकर कंप्यूटर पे ऐसे काम करना, जैसे बच्चों का अगर बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चे कंटिन्यू 5-6-7 घंटे तक रीडिंग करते रहते हैं। तो मतलब बेसिकली ज्यादातर बैठे, अभी हम बोले तो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि ज्यादातर जो भी काम करते हैं सब लोग ऐसे बैठे ही चेयर पे बैठ के ही काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ना इन लोगों को पेन होता है पीछे। तो उसको लेकर लोगों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि कौन कौन सी चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना हो? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इसमें पोस्चर की बात आई, कैसे बैठते हैं लंबे टाइम तक। दूसरी बात यह है कि बच्चों की बात की। तो पहले अगर पोस्चर की बात करें और एक टाइम लंबे समय तक बैठने की बात करें, तो किस तरह आप बैठते हो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप बाकी टाइम में क्या करते हो। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो या रेगुलर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो जिसमें आपकी कसरत हो रही है, तो फिर आप अगर एग्जैक्टली जैसा पोस्चर होना चाहिए वैसा ना भी बैठो तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स में या आपको इंटरनेट पर दिखाया गया है कि इस तरह ही बैठना है, इस एंगल में ही बैठना है, वैसे पूरे टाइम बैठकर आप काम नहीं कर सकते। काम करने में तो आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी और यूजुअली ऐसे इस तरह बैठना पड़ सकता है कि कमर पे आपके जोर आएगा ही। आपको आपके शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, आपके मनके को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, स्नायु को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि किसी भी पोजीशन में आप काम कर पाओ, और उसके लिए रेगुलर स्पोर्ट्स या रेगुलर एक्टिविटी या एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जी, दूसरी बात आप जो बोल रहे थे बच्चों की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चों में हमेशा हम कमर के प्रॉब्लम, मनके के प्रॉब्लम्स कभी ध्यान ही नहीं देते। यूजुअली पेरेंट्स बोलते हैं कि थोड़ा दर्द हो रहा है तो बच्चा नाटक कर रहा होगा, या बच्चे पे कभी उतना ध्यान नहीं देते जितना बड़ों पर ध्यान देते हैं जब मनके की बात आती है। और बच्चों में ऐसे मान लेते हैं कि मनके की बीमारी होती ही नहीं, पर ये बहुत ही गलत है। बच्चों में काफ़ी सारे मनके के प्रॉब्लम होते हैं, और तो और कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो बच्चों में तभी ठीक नहीं किए गए तो वो बढ़ते जाते हैं, स्पेशली जिसको स्कोलियोसिस बोलते हैं, जो बांकपन जो मनके में बन जाता है, वो अगर सही उम्र में नहीं पकड़ा गया और बाद में अगर वो बढ़ जाए तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है। काफ़ी बार मनका सीधा भी नहीं हो सकता, उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा कोई कंप्लेंट कर रहा है या आपको दिख रहा है कि बच्चा थोड़ा टेढ़ा चल रहा है या कंधे थोड़े ऊपर नीचे है, पीछे से मनका थोड़ा टेढ़ा हुआ है, अगर आपको ऐसा कुछ भी पहले से पता चल रहा है तो आप इमीडिएटली एक बार एक डॉक्टर का एटलीस्ट ओपिनियन ले लो। अगर एक्सरे में वगैरह कुछ प्रॉब्लम निकल जाए वो तभी ठीक हो सकती है। अगर हो जाएगी तो आगे के लाइफ लॉन्ग के प्रॉब्लम्स उनके कम हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अभी हम कार्यक्रम के अंत तरफ है, आप यहाँ पे आए और हमारे दर्शक मित्रों की इतनी अच्छी आपने माहिती दी, इसके बदल आपका खूब आभार। जो आता डॉक्टर गौरव खंडेलवाल के જેમને હાલ આપણને સ્પાઇન વિશે જેટલી સરસ જાણકારી આપી, માહિતી આપી, કારણ કે આપણે ઘણી વખત જે છે તે આપણે મોટા જે આપણા ઘરમાં જે ઉંમરલાયક વ્યક્તિ હોય છે એમના પર ધ્યાન આપતા જો કે આ પ્રકારની સમસ્યા બાળકોને પણ થઈ શકે છે, એટલે આ બાબતને લઈને લોકોએ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ। તેમજ જે લોકોનું રેગ્યુલર વધારે સમય બેસીને કામ કરવાનું, જો ખાસ આપણે કરીએ કે બેઠાડું જીવન હોય તો એમને પણ આ દરેક બાબતોને લઈને ખ્યાલ રાખવા જેવું છે। અને સાથે જો આપને સ્પાઇન ને લઈને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આપના પરિવારના સભ્યોને અથવા તો આપના કોઈ પણ રિલેટિવને, તો આપ જે છે તે સલ્વી મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલ છે ત્યાં તમે જઈ શકો છો અને રૂબરૂ ગૌરવ ખંડેલવાલ ડોક્ટર સાહેબ છે જેમને તમે ત્યાં મળીને અત્યારે વધુ જાણકારી પણ ત્યાંથી આપ મેળવી શકો છો। અત્યારે હાલ બસ આટલું। જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે। નમસ્કાર।